سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا امتحان لے رہے ہیں وہ ہمیں آزمائے نہ، وہ ہمارا امتحان نہ لیں، وہ اپنی بھی تاریخ کو یاد کریں اور ہماری بھی تاریخ کو پڑھیں۔ وہ ہمارے نبی کی تاریخ تو بہت بعد میں پڑھیں، ہمارے نبی کے سچے جانشینوں کی تاریخ تو بہت بعد میں پڑھیں۔ پہلے وہ اس ملک کے ہماری تاریخ پڑھیں کہ اس ملک کو ہم نے کیا دیا، اس ملک کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس ملک میں امن و امان کے لیے، شانتی کے لیے ہم نے کیسے کیسے پیغامات دیے ہیں، پہلے اس کو پڑھیں۔ وہ آج ہر طریقے سے، آپ سب سے بڑی چیز یہ دیکھیں کہ آج وہ آقا علیہ السلام قرآن یا اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورفعنا لک ذکرک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو ختم نہیں کر سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو وہ ختم نہیں کر سکتا، وہ اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ ارے اسلام کو تم چاہتے ہو کہ ہم ہندوستان سے ختم کر لیں؟ ارے اسلام وہ پیارا مذہب ہے، وہ انوکھا مذہب ہے جو دنیا کے ہر کونے پر ہے، اور ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی رفعت ہماری صرف زبانوں کی محتاج نہیں ہے کہ ہم نام لیں گے تبھی ہماری نبی کی عظمت میں چار چاند لگیں گے۔ ارے اللہ نے پوری دنیا میں ایک اذان کے ذریعے سے ایسا قانون بنا دیا ہے کہ دنیا میں جس کونے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو اسی کونے پر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ملک سے ہم اسلام کو ختم کر دیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ ارے مسلمان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے۔ مندر سے باہر نکل کے تو باتیں کرو، سمجھے؟ راستوں میں آ کے آج ہم جیسے مسلمان اس کھلے میدان میں باتیں کر رہے ہیں، آؤ اگر ہمت ہو تو اس کھلے میدان میں باتیں کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ مسلمان کیا ہے، ہمارا ملک کیا ہے۔ ملک سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اسی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس ملک کے لیے ہمارے نبی نے اس ملک کو پسند کیا، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس ملک سے ہمارے نبی کو ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبو آئی، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں آزمانا ہے تو سرحدوں پہ بھیج کے مسلمانوں کو مسلمانوں کو آزمانا ہے تو ہندوستان کی محبت میں آزماؤ کہ مسلمانوں کے دلوں میں ہندوستان کی محبت ہے کہ نہیں ہے، ہندوستان سے وفاداری ہے کہ نہیں۔ ارے مسلمان تو ایسا وفادار ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں دفن ہوگا۔ مسلمانوں کو آزماتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچا کے، مسلمانوں نے کب تک آزماؤ گے مسلمانوں کو؟ یہ وہ قوم ہے جب خاموش رہتی ہے تو رہتی ہے، لیکن جس دن اٹھتی ہے تو ہر باطل طاقت کا جواب منہ توڑ جواب دینا بھی چاہیے۔ گونگی بہرین حکومتوں سے، جو بھی گونگے بہرے بنے اس دور میں، اگر ہمارے کسی بھائی نے اگر کسی مذہب کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہوتی، ہم آپ سے بھی کہیں کبھی کسی مذہب کے خلاف انگلی نہ اٹھانا، ہمیں کسی سے کیا مطلب۔ ارے ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے کہ ہم زندگی بھر اپنے مذہب کی اگر تعریفیں کرتے رہیں تو ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن ہمارے مذہب کی تعریف کم نہیں پڑے گی۔ تو ہم کیوں کسی کی برائی کریں، ہم کیوں کسی میں کمیاں نکالیں؟ ارے ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ ہم زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کریں، ہم اللہ کی زندگی بھر تعریف کریں، ہم اسلام کی زندگی بھر تعریف کریں، ہم اپنے سچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جانشینوں کی تعریف کریں۔ ارے ہماری سانسیں کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں ہمارے جسموں میں ہے، ہماری روحیں ہمارے جسموں میں کسی پر انگلیاں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، ہماری روحیں جسموں میں ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ تم اپنے نبی کے گن گاتے رہو، اپنے نبی کا چرچا کرتے رہو، اپنے نبی کے پیغامات کو عام کرتے رہو۔ بس ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ بھی یاد ہے۔ ہمارے اسلاف نے نبی کی عظمت پہ انگلی اٹھانے والوں کو جو
काम तमाम किया है हम वो भी जानते हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद ने मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गालियां दी थी। खालिद ने कसम खाई थी कि जब तक उस शैतान को, उस मरदूद को, उस बादशाह को हम उसका काम तमाम नहीं कर देंगे, जब तक खालिद एक बूंद पानी का अपने गले से नहीं उतारेगा। वो थे मर्द मुजाहिद, हम भी उनके सच्चे गुलाम हैं, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। वही हुआ कि टाइम नहीं लगाता हजरत खालिद इब्न वलीद ने उस बादशाह, उस मलून का तन से सर जुदा करके और काफिरों के सामने फेंक के कहा था, नबी के गुस्ताख की बस एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। हम अमन चाहते हैं, हमारे नबी, हम वही चाहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया। आप कुछ थोड़ी बहुत आयतें पढ़ के हदीसों की बात करते रहे, उन्हें क्या शऊर मालूम? समझे, हदीसें पढ़ना कोई आसान थोड़ा नहीं। हदीसें पढ़ना बड़े बड़े आलिमों का काम है, हदीसों को समझना बड़े बड़े आलिमों का काम है। आज लोग कुरान पे, हदीसों पे, नबी पे उंगलियां उठाते हैं। अरे वो अपने आप को देखें कि हम क्या हैं। हम वही काम कर रहे हैं कि हम आसमान की तरफ थूक रहे हैं, वो धूप हमारे ऊपर गिरेगा, कहीं और नहीं गिरेगा। लेकिन हम अहले कन्नौज से आप सबसे गुजारिश करते हैं, आज आप जैसे अपने नबी के नाम पर एक हुए, आप तहैया कर लीजिए कि जब तक हमारे जिस्म में सांसें हैं, हम इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर मुत्तहिद बने रहेंगे। आप अगर मुत्तहिद बने रहेंगे तो कोई आप बातिल ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और उन बातिल ताकतों से भी हम कहना चाहते हैं कि हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते, और लेकिन नबी के नाम पर किसी को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो हमारे नबी से, हमारे मजहब से, हमारे इस्लाम से, हमारे कुरान से, हमारे खुदा से कोई खिलवाड़ न करे, कोई खेलने की कोशिश न करे। हम मांग कर रहे हैं, और सिर्फ मांग हम सलाबों की नहीं कर रहे हैं, हम उस मरदूद शैतान की बोटी बोटी होते हुए देखना चाहते हैं। और जिस मजहब के खिलाफ कोई उंगली उठाए, आप एक सजा मुतय्यन कर दीजिए, कानून बना दीजिए। आप तरह तरह के कानून बना रहे, तरह तरह के कानून पास कर रहे हैं। मास्क का कानून पास किया, अमित शाह का कोई बता दे आज तक मास्क लगाया उसने, जितनी सभाएं हुई कोई बता दे। तो कानून का गरीबों के लिए है, कानून के आवाम के लिए है, कानून तुम्हारे बादशाहों के लिए नहीं है। तुम अगर सल्तनतों के हुक्मरान हो तो तुम्हारे कानून क्या उनके लिए नहीं है? कानून अगर एक मालदार के लिए जैसा है, एक बादशाह के लिए जैसा है, वैसे ये गरीब के लिए होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून अगर आप पार्लियामेंट में आज मुसलमानों के लिए कानून बना सकते हैं, किसानों के लिए कानून बना सकते हैं, तो क्यों ना सबसे बड़ा कानून वो होगा जो मजहब के नाम पे बनेगा, कि किसी मजहब के नाम पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसे सजाए मौत दी जाए। एक सजा, एक सजा, एक सजा। हमारे परसों बैठे मीटिंग हो रही थी, हमने कहा भी, हमारे अहम लोग शहर के बैठे हैं, ये सब कोई पार्टी की बिना पे नहीं आए, अहले इस्लाम जो भी बैठे हैं ये हम जानते हैं। अब इंसान की आदत है, कुछ ना कुछ बातें उससे निकल जाती हैं पार्टी के ताल्लुक से, लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर एक हुए, और इंशाअल्लाह ये एक बने रहेंगे। जब नबी की बात आएगी तो न कोई सपा को देखेगा, न बसपा को देखेगा, न कांग्रेस को देखेगा, न बीजेपी को देखेगा, किसी पार्टी को नहीं देखेगा, बल्कि एक पार्टी को देखेगा, वो हमारी पार्टी, मदीने की पार्टी। तो ये सब हमने कहा इन लोगों से, क्या वक्त आ गया है हर एक मजबूर का साथ देने का, हर एक मजलूम को छुड़ाने का। और इन लोगों ने वादा भी किया है कि इंशाअल्लाह अहले कन्नौज और उसके अलावा जो भी हमारे लोग हैं, हम अपने भाइयों का हर मामले में इंशाअल्लाह, दीन के मामले में हमारी और हमारे जो हमारे लोग हैं, हमारे रुफ़क़ा हैं, उलमा हज़रात हैं, जब भी अहले कन्नौज को कोई भी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम और हमारे रुफ़क़ा आपके कांधे से कांधा मिला के इंशाअल्लाह साथ चलेंगे। लेकिन आप कभी अपने जाती मामले में कभी एक दूसरे से झगड़ना ना,
गुस्सा हराम है, हर मामले में हराम है, लेकिन जब हमारे नबी की बात आएगी तो गुस्सा सवाब है। हम गुस्सा करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा गुस्सा दिखेगा। ये आज की एक महफिल, ये इब्तिदा है, ये हमारे नबी की बात है। हम नबी के मामले में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं, और इंशाअल्लाह ये अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ये मुश्किल से 8-10 घंटे का प्लान है, और वो भी एक छोटी सी पोस्ट के जरिए जितनों की खबर हुई वो हो गई। लेकिन अगर कोई कार्रवाई ना हुई, हमारे शासन प्रशासन एलआईओ वाले हमारे खुर्शीद भाई भी यही मौजूद है, हम सबसे कहना चाहते हैं, इसमें सब पता नहीं क्या हो गया, हमारे लोगों को सब पता नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई कानों में ऐसा तेल डाल लिया हो कि किसी को कोई खबर ही नहीं। हमारे बहुत से भाई भी इलेक्शन में बिजी हैं, उन्हें भी कोई पता नहीं आखिर हुआ क्या है। कन्नौज में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के सीने जल रहे हैं, मुसलमानों के दिल जल रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों पे जब हमला हुआ था, मुसलमानों की औलादों पे जब हमला हुआ तो मुसलमान खामोश था। आपने 370 बनाया, मुसलमान खामोश था। आपने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, मुसलमान खामोश था। NRC CA वगैरह के आपने कानून बनाए, मुसलमान खामोश था। लेकिन अब उस नबी की बात आई है, जिस नबी के सदके में इस मुसलमान को जिंदगी मिली है, जिस नबी के सदके में इस मुसलमान को सांसें मिली है, जिस नबी के सदके में ये मुल्क बना है, और जिस नबी के जानशीनों के सदके में इस मुल्क में अमन कायम है, अब उसकी बारी आई है, तुम खामोश नहीं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! बस आपसे कहना चाहते, ये सब आपके साथ है। आप अपने दुख दर्द लेकर जो जैसी इस्तिताअत रखता है, वो हमारे नेता हो, हमारे शहर के अवाम हो, खास लोग, ये नहीं सिर्फ यही खास बैठे हैं, बल्कि कुछ खड़े भी हैं, साइडों में भी हैं, सब अहम लोग हैं हमारे। लेकिन हर मजलूम के दुख दर्द दूर करने के लिए हमारे इन भाइयों पर उनका फर्ज है कि उनके ये दुख दर्द को दूर करें। और सबसे अलग हटके हर हिंदुस्तानी बाशिंदे के दुख दर्द हो, बिना तफरीक मजहब व मिल्लत, हर एक को। और हम बार बार कहते रहेंगे, और ये करेंगे इंशाअल्लाह, हम करवाएंगे इनसे, और हम भी करेंगे इंशाअल्लाह। दीन के मामले में, मजहब के मामले में, अमन के मामले में इंशाअल्लाह इजामतुल रहमतिया आपके साथ। और इंशाअल्लाह जब नबी की बात आएगी तो गर्दनें आपकी नहीं कटेंगी इंशाअल्लाह। हमें इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन दीवानों को, क्योंकि हमारे रगों में हुजूर बहरुल इरफान ने ऐसे नबी की मोहब्बत के जाम पिलाए हैं, इंशाअल्लाह हम आवाम से पीछे नहीं होंगे। जब वक्त आएगा नबी के लिए तो इंशाअल्लाह सबसे पहले अपनी गर्दन कटाएंगे, क्योंकि हमारा नबी हमारे लिए सब कुछ है, हमारा ईमान हमारा नबी है, हमारा सब कुछ मेरा नबी है। अरे दुनिया की कितनी जिंदगी है, आप दुनिया में कितने दिन अच्छे गुजार लेंगे, लेकिन जब आपकी रूहें जिस्मों से निकलेंगी तब आपको पता चलेगा कि अब हमारा बाप काम नहीं आ सकता है, अब हमारी औलाद काम नहीं आ सकती है, अब दुनिया का कोई नेता कोई मंत्री काम नहीं आ सकता है। अब काम आने वाली जात कोई और नहीं है, बल्कि काम आने वाली जात मदीने का ताजदार है। कब्र में अज़ाबे कब्र से छुड़ाने के लिए हमारा नबी हमारी कब्र में होगा, मैदान महशर की गर्मी से बचाने के लिए हमारा नबी हमारे साथ होगा, और जन्नत में ले जाने के लिए हमारा नबी हमारे। आप अपने नबी की कुर्बानियों को याद करें कि आपके लिए, आप तक इस्लाम पहुंचाने के लिए नबी ने, उनके सहाबा ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी। आप ये 1-2 घंटे की धूप झेल रहे हैं। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पे लिटा के घसीटा जा रहा था, पत्थर रखे हुए थे पेट पर, और गरम गरम रेत पे हजरत बिलाल को घसीटा जा रहा था। लेकिन बिलाल की जबान पर एक ही सदा थी, अहद अहद की सदाएं आ रही थी, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसा जाम नबी ने पिलाया था, अपने दीदार का ऐसा शौकीन बनाया था गुलामों को कि वो हर जुल्म सहने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने दिल से अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत निकालने के लिए तैयार। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी बात जंग बदर के मौके पर, आज कहते हैं लोग कुरान में जिहाद का हुक्म है। एक साहब हमें भी, हम बिहार जा रहे थे, ट्रेन में कोई अधिकारी थे, हमारा भी एसी में टिकट था, मिल गए साथ में, वो भी यही बातें हमसे बहुत 1 साल पुरानी बातें करने लगे। पहले कुरान में ऐसी बातें आई, हमने कि आपने कुरान की वो बातों को तो पढ़ लिया, लेकिन उन मौकों को तो पढ़े जिन मौकों पर ये आयतें नाज़िल हुई। किस वजह से हुई? अरे हमारे नबी को जितना सताया गया है,
पूरी इस मिल्लत को, पूरी कौम को भी उतना नहीं सताया जाएगा। हमारे नबी ने पत्थर खाए अपने जिस्म पर तुम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए। तुम्हारे वजह से कुर्बानियां हमारे नबी ने दी, और तुम कहते हो कि हम कुरान में ऐसी ऐसी आते। अरे आप सोचो कितना सताया गया होगा कि हमारे नबी और सहाबा ने अपना वतन छोड़ दिया मक्का, समझे, अपनी बीवियां छोड़ दी, अपनी जमीनें छोड़ दी, अपनी दुकानें छोड़ दी, मक्के से हिजरत कर गए अमन के लिए कि हमारे इस मुल्क में कोई अमन कायम रहे, कोई शर न फैले, कोई फसाद न हो। लेकिन तब भी बातिल ताकतें खामोश से नहीं बैठी और मदीने पाक पहुंचकर नबी को सताने की कोशिश करने लगी। तब मेरे नबी ने तलवार उठाई। जंगे बदर का मौका है, आपके लिए नबी ने कैसी दुआएं की, आखिरी बात हमारी सुन लें। खीमे लगे हुए 313 मुसलमान, रात की तन्हाई है, कोई नहीं, सब सो रहे हैं, सन्नाटे का आलम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खीमे के अंदर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। किसके लिए दुआएं मांग रहे हैं? आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपकी फतह कामरानी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपकी इज्जतों की हिफाजत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। रात तारीख है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मौला की बारगाह में रो रो के दुआएं, आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी तर हो गई और आप कह रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, इस रूए जमीन पर तेरे नाम लेवा ये 313 है। अगर आज इन्हें खत्म कर दिया गया, आज इन्हें मिटा दिया गया, तो इस रूए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, आपने हाथ पकड़ लिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, बस कीजिए, अल्लाह आपका मददगार है। और वो सुबह हुई, अब जंग बदर सबने पढ़ी होगी, सुना होगा, देखा होगा कि उस जंग का नक्शा मेरे नबी के सदके में कैसा है। मेरे नबी ने कुर्बानियां दी हैं आप तक दीन पहुंचाने में, ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि आप हजारों जाने अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान कर दे तब भी आप हक अदा नहीं कर सकते। और हम मैदान महशर में तो तड़पेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लिवाउल हम्द हमारे हाथ में होगा, हम्द का झंडा हमारे हाथ में होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक अगर किसी के जबान पर होगा कि आज मैदान महशर की गर्मी से, आज मैदान महशर में अगर कोई बचा सकता है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बचा सकता है, तो और नहीं बचा। तो उस नबी पर अगर हमारी हजारों जानें कुर्बान हो जाएं तो वो भी कम है। ये आप लोग तहैया कर लीजिए कि जिएंगे उनकी खातिर और मरेंगे नाम पर उनके, जिएंगे उनकी खातिर और मरेंगे नाम पर उनके, जहां में हर जगह अजमत के उनके गीत गाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप मुत्तहिद बने रहिए, हम आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह इस जिस्म में जब तक रूह है, मेरे वालिद बुजुर्गवार ने भी इस कौम के लिए तड़पते रहे। आखिरी उनके अल्फाज से उन्होंने कहा था, मुझे 2-3 चीजों की बहुत फिक्र है। सबसे पहला जुमला था वो ये था कि मुझे अपनी कौम की सबसे ज्यादा फिक्र है। तो इंशाअल्लाह उनके ये गुलाम भी इस कौम के साथ बने रहेंगे, इनके कांधे से कांधा मिला के चलते रहेंगे। लेकिन आपसे कहता हूँ, इस्लाम के मामले में, नबी के मामले में, अल्लाह के मामले में, कुरान के मामले में बाप को बाप न समझना, बेटे को बेटा न समझना, हुकूमत को हुकूमत न समझना। हर एक अपने नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए 24 घंटे 365 दिन तैयार रहता है। बस आप शांति के साथ जैसे आए हैं वैसे ही अपने घरों पर जाएंगे। और इंशाअल्लाह अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इंशाअल्लाह फिर एक प्लान बनेगा और इंशाअल्लाह ये मैदान या बोर्डिंग मैदान इंशाअल्लाह हम एक दिन भर के दिखा देंगे।